था हर धर्म में, आस था हर कर्म में, आस था हर घर में, आस था हर दर में, आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤੇ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਾਥੇ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾ ਓੜਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਬਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾਈ ਸੁਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦੇ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧੇ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥੋ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰੋ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਾਰੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੋ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਮਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਫਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮਹੁ ਪਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੈ ਲਾਇ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ
ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵਾ, ਗਾਮਾ ਗਾਮਾ ਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਤੇ ਬਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੈ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭੋ ਜਾਹੋ, ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਵਸਤ ਆਥੇ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਵ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਇਤੀ ਸੁਟ ਨ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਆ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਗ ਦਾ ਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਹੇ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦਾਂ ਏਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ,
ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਹੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜਿਆ ਹੋਏ ਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮਾਂ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿਤੈ ਸੋਨ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਕਾੜਤ ਕੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੋਨ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥੈ ਘੜਤ ਘੜੀਆ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿਥੈ ਘੜੀਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਘੜੀਆ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹਿ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹੇ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦੋ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੋ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮః ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहा अवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस्याण पालक होए ता एक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े फुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया अध्याय 53। मेना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का मां पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज आप अपनी पुत्री देवी पार्वती को यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर यह सुनकर देवी पार्वती के भावी विराह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मेना को संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मेना मां पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मेना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया। उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा रजोचित श्रृंगार करके मां पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मेना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पत्नी व्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इस लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उनकी सेवा करती है, वह इस लोक में और संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। सावित्री, लोकामुद्रा, अरुणधति, शांडली, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वादा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई है। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पतिव्रत के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव
एवं मुनीश्वरों को भी माननीय हो गई है। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक ही कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जगने से पहले ही जाग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो तब तक अपने पति की दृष्टि के सम्मुख न जाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गए हों तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली आए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुका पूछे, नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रश्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरों के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उसके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करे। पति की आज्ञा के बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अश्नु पति को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, दो तथा भिक्षुक समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन ना करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली ग्रह देवी को चाहिए वह घर की सामग्री को ले संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींची रहे। पति की आज्ञा के बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य न आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। यदि पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन ना करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुंह कदापि न देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ पैर व कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल या कुलटा सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष करने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे। कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसली, झाड़ू, सिलदांत और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर भी न बैठे।
मैथुन काल के सिवा और किसी भी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने। पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए। काहे डोले प्राणिया तुद रखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया तुद रखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, जिन पैदाइश आधार। तू काहे डोले प्राणिया खुद रखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया खुद रखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जी सगल को देदा, जी सगल को देदा। तू काहे डोले प्राणिया खुद रखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया खुद रखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले। मेदनी सोई करदा सार। कट कट मालिक दिलां का सच्चा परवरदिगार। तू काहे डोले प्राणिया खुद रखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया खुद रखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले। कुदरत की ना जानिए वटा वे परवाह। कर बंदे तू बंदगी जिचर कट में साह। तू काहे डोले प्राणिया खुद रखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया खुद रखेगा सिरजनहार।
समरथ अकाथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। तू काहे डोले प्राणिया, तुझ राखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया, तुझ राखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले। समरथ अकाथे अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। तू काहे डोले प्राणिया, तुझ राखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया, तुझ राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार। तू काहे डोले प्राणिया, तुझ राखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया, तुझ राखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले। बाहर हम काहे आवेंगे, बाहर हम काहे आवेंगे, बाहर हम काहे आवेंगे, बाहर हम काहे आवेंगे। आवन जाना हुक्म किसे का, आवन जाना हुक्म किसे का, आवन जाना हुक्म किसे का, हुक्म बूझ समावेंगे। बाहर हम काहे आवेंगे, बाहर हम काहे आवेंगे, बाहर हम काहे आवेंगे। उदक समुंद सलल की साया, नदी तरंग समावेंगे। समुद्र सरल की साख्या, नदी तरंग समावेंगे। सुन सुन मिलया समदर्शी, सुन सुन
बोहर हम काहे आवेंगे, बोहर हम काहे आवेंगे। चूके पंचतात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, चूके पंचतात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। जब चूके पंचतात की रचना चुकावेंगे। गरी गरी निसा धनी रेगा तब मापा नामा रेगा धनी निसा धनी रे सा रे सा निसा धनी रे सा रे धा मादा सा सा रे मादा रे गा रे सा निसा धनी रे सा। जब चूके पंचतात की रचना वैसे परम चुकावेंगे, जब चूके पंचतात की रचना वैसे परम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ भय समदर्शी, दर्शन छोड़ पाए समदर्शी एक नाम ते आवेंगे, बोहर हम काहे आवेंगे, बोहर हम काहे आवेंगे, बोहर हम काहे आवेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। कोई कैदी जेल में कैद हो, कई सालों तक कैद में रहे। कोई कैदी जेल में कैद हो, कई सालों तक कैद में रहे, दुख झेलना पड़े, सजा भुगतनी पड़े, आजादी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। तो अब अंदर बैठकर यही सोचते हैं कि वापस मैं ऐसा गुनाह नहीं करूंगा कि जिससे मुझे वापस जेल में आना पड़े। जिस गलती की सजा की वजह से वो जेल में इतने साल बिता रहा है, मन में पश्चाताप होता है। जो अच्छा कैदी हो, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। कैदी भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो जेल में आकर बिगड़ते हैं, एक वो जो जेल में आके सुधरते हैं। नेक कैदी, अच्छा कैदी ये कहता है, मन में विचारता है कि वापस ऐसा काम नहीं करूंगा कि जेल में दोबारा आना पड़े।
ये शब्द यही संदेश देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं कि मैं एक नेक कैदी बना हूं। ये संसार एक कैद है, जेल है, ये जीवन जन्म मरण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इस कैद में आ गया उसे कई प्रकार के दुख भुगतने होंगे, सजा भुगतनी होगी। और जो नेक कैदी है वो कहता है कि मैं दोबारा जन्म में नहीं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और केवल वो कहता नहीं है, वैसा वो अपना आचरण बनाता है। कबीर जी कह रहे हैं कि बौहर हम काहे आवेंगे। मैंने जेल में रहकर सीख लिया है कि दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा इस जेल में आना पड़े, इस शरीर रूपी जेल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बौहर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्म बूझ समावेंगे। कबीर जी बड़ी गहरी बात कह रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं आना और जाना उसका हुक्म है, और उसके पीछे जो रमज है वो क्यों भेजता है वो मुझे पता चल गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं ज्ञान हो गया है मुझे कि वो क्यों भेजता है और क्या करूंगा कि वो अब नहीं भेजेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी गहरी विचार है शब्द की, बड़ी प्यारी विचार है कि ऐसा कौन सा काम करें कि अजूनी को प्राप्त हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि प्रकरण चल रहा है अजूनी सह भंग। अजूनी जो जोनियों से रहते हैं परमात्मा, अगर अजूनी को प्राप्त होना है तो क्या क्या करना है कबीर जी शब्द में कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारा शब्द है। आइए दो पंक्तियों का विचार करते हैं। उद्दक समुद्र सलल की साख्या, नदी तरंग समावेंगे। जिस प्रकार पानी समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो जाता है, जिस प्रकार नदी का पानी बहता हुआ आखिर में समुद्र में जा मिलता है, कबीर जी कहते मैं भी इसी प्रकार उस परमात्मा में लीन हो जाऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुन सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप हो जावेंगे। हवा हवा से मिल गई, पर कैसे? बड़े ध्यान से समझना। कबीर जी कह रहे मैं दोबारा नहीं आऊंगा। इंसान आता क्यों है? पहले ये विषय सबसे गंभीर है। फिर दूसरा विषय ये बनता है कि क्या करें कि छूट जाए, ना आना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति पर बड़े ध्यान से विचार करना होगा। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं सुने सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप हो जाएंगे। सुने सुन किसे कहा है? मेरा मन वासना से सुन हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मन वासनाओं से ऊपर उठ गया है। अब मेरे मन उस परमात्मा के मन में लीन हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं होती, अजूनी की अवस्था कैसे प्राप्त होगी? कबीर जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सब वासनाओं के अधीन हैं, और जो इन्हें मारकर इनसे ऊपर उठ जाता है गुरु की कृपा से, वो पवन रूप हो जावेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे। आवन जाना हुक्म तिसै का, आवन जाना हुक्म तिसै का, आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्म पूज समावेंगे। और हम काहे आवेंगे, और हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे। कैसे बोलिए धन गुरु नानक। जब चुके पंच तात की रचना, ऐसे भरम चुकावेंगे।
जब चूके पंच धात की रचना, ऐसे भरम चुकावेंगे। कई लोग इस पंक्ति का अर्थ मैंने कई ज्ञानियों को सुना है, वो ये करते हैं कि जब शरीर छूटेगा तब मेरे भरम खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी की विचार गहरी है। ये जीते जी की बात है, मरने के बाद की बात नहीं है, शरीर के मरने की बात नहीं है, यहाँ पर मन के मरने की बात है। जब चूक है पंच धात की रचना, कल भी ये विचार आए थे कि जब मन शरीर से अलग हो जाता है, आत्मा जीते जी शरीर से अलग हो जाती है, मन शरीर से ऊपर उठ जाता है, शरीर के दुखों से। ये उस अवस्था की बात कर रहे हैं भगत कबीर जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब चूक है पंच धात की रचना, ऐसे भरम चुकावेंगे। यहाँ पर भरम कहा है मोह को। पहली पंक्ति में आया वासना काम, दूसरे में आया है मोह, क्योंकि सबसे खतरनाक यही दोनों हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार तो अपने बस में है ही नहीं, वो तो गुरु ही दूर करेगा। जो हम दूर कर सकते हैं, जो गुरु ने हमें ताकत दी है कि मेहनत करके दूर किया जा सकता है, वो ये चार चीजों में से ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्रोध पे भी कई इंसान काबू पा लेते हैं, लोभ पे भी पा लेते हैं, क्योंकि ये उससे नीचे की अवस्था है। मोह पे और काम पर काबू पाना बहुत ज्यादा हिम्मत और मेहनत चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीते जी मन को मारना पड़ता है, तब इंसान यहाँ पर पहुंचता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष ने बड़ा प्यारा उदाहरण दिया करते थे। कहते थे इंसान ना इस जोनी में भी जानवरों की जोनी जैसा रहता है। प्यार से, और इसके के बारे में गुरबाणी में बड़ा प्यारा शब्द भी है। महापुरुष बड़ी डिटेल में समझाया करते थे। कहते थे जब इंसान वासना भोगता है उस वक्त हाथी की योनि में होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इंसान मोह में गधे के जैसा काम करता है, मोह में पड़कर, तो गधे की जोनी में होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार सारे जानवरों का नाम लिया था। जब लोभ करता है, लालच करता है, तो कुत्ते की जोनी में होता है, कुकर की जोनी में है। इंसान ही, पर इंसान होते हुए भी ये जानवरों की जोनियां भोगता है, इन पांचों के वश में होकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि हाथी को जब काबू करना होता है ना, तो एक हथनी का पुतला बनाकर एक खड्डा खोदा होता है, उसके ऊपर घास बिछाई होती है। दास ने देखा है ये, हाथी को जब काबू करते हैं, पकड़ना होता है, तो एक बहुत सारा बड़ा खड्डा खोदते हैं, ऊपर घास बिछाते जैसे जमीन लगे, उसके ऊपर एक पुतला रखते हैं हथनी का। काम वासना में अंधा होकर हाथी भागा चला होता और खड्डे में गिर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काबू में आ जाता है। कबीर जी कह रहे हैं अगर तो जीते जी इस जेल से छूटना है, जिस जेल में आए हैं, तो इन चीजों पर चलना पड़ेगा। मैं इस तरह से छूटा हूं, कबीर जी अपनी बात कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब चूक है पंच धात की रचना, ऐसे भरम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ भय समदर्शी, एक को नाम दियावेंगे। सिंपल है ये तो, जित हम लाए तित ही लागे, कैसे कर्म कमावेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर जी कृपा करे जो अपनी, तो गुरु के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनरप जन्म ना होए। जीवत मरो, ये है मन को मारना। जीते जी अपने मन को मारना, जिसकी बात अभी चल रही थी। हर वक्त हमारे पास दो चॉइस होती है साथ संगत जी। हमेशा कृष्ण जी तो भगवद गीता में ये बात बार बार कहते हैं, और वाणी भी कहती है। हमारे जीवन में हमारे सामने हमेशा दो पहलू होते हैं। कमजोर इंसान पाप की तरफ चला जाता है, और जिसके मन को ताकत होती है गुरु के नाम की, वो सही रास्ता चुनता है। पाप के रास्ते में पहले आनंद दिखाई देता है, दूर का दुख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और गुरु के रास्ते में पहले मुश्किल जरूर है, आगे सुख ही सुख है। उस सुख की बात कर रहे हैं कबीर जी कि बहर हम कहाँ आवेंगे, अजूनी को प्राप्त हो जाएंगे। अजूनी योनियों में नहीं आना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहो कबीर जो नाम समानी, सुन रहे अली सोई। और इसको पाने का एक ही तरीका है, प्रभु के नाम से सुरत जुड़ी रहे, लिव जुड़ी रहे। जिसकी लिव जुड़ी रहेगी, श्वासों के साथ सिमरन चलता रहेगा, उसकी याद बनी रहेगी, वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। लिव टूटी, समझो माया ने अपना असर किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिव छुड़की, लगी तृष्णा, माया अमर बरताया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये माया इतनी खतरनाक है। बालक माता के गर्भ में सुरत जुड़ी होती है निरंकार से, बाहर निकलते ही माया का प्रभाव, बालक रोता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरबाणी से प्रमाणित कर रही है, गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, हे माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। जन्म लेते ही मोह में पड़ गया बच्चा माँ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा भाव पैदा हो गया। क्यों? माया ने अपना असर डाल दिया। तो उस वक्त बच्चा जन्म लेते ही अगर कोई माता उसे सुखमनी साहिब जी का पाठ सुना दे, माया कैसे असर डालेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। पता तो हमें सब कुछ है, करते नहीं बस। आवन जाना हुक्म तिसे का, समावेंगे बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे। से बोलिए धन गुरु नानक। कथा चल रही है अजूनी सह भंग। कल भी यही प्रकरण था। परमात्मा जिसकी बात कर रहे हैं, एक ओंकार, ये अक्षर केवल उसके लिए इस्तेमाल किया गया, केवल उसके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो उस अवस्था को प्राप्त होना चाहते हैं, उसमें लीन होना चाहते हैं, अपना स्वभाव अजूनी का बनाना पड़ेगा। परमात्मा न जन्मता है न मरता है, वो योनियों से रहते है, स्वतः प्रकाश है, जिसे पंजाबी में गुरुमुखी में सुता प्रकाश कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वयंभू कहते हैं, सहभंग, अपने आप प्रकाशमान, उससे किसी की ताकत की जरूरत नहीं, वही परम शक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए वाणी क्या कहती है। आपी ने आप साजे, आपी ने रचियो ना, दुई कुदरत साजी, कर आसन डिठो छा। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो ना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक कि तू अपने आप जिसकी सृजना हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सृष्टि की रचना जिसने की है, उसकी रचना किसी ने नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहभंग गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों से कहा कि माया अजूनी है,
पर सहभंग नहीं। अजूनी सहभंग जब तक नहीं हो जाता परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, थाप्या ना जाए कीता ना होए, आप पे आप निरंजन सोए। उसे किसी ने थापा नहीं, उसे किसी ने बनाया नहीं, आप पे आप निरंजन सोए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सबसे विशेष पहलू है, सबसे विशेष, कि अजूनी की अवस्था को प्राप्त कैसे हो। ये बहुत ही गंभीर पहलू है साथ संगत जी। दास फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि दास किसी पर तर्क नहीं कर रहा, किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। जो सच है वो बताने की कोशिश कर रहा है, वो भी बड़े ध्यान से, ताकि किसी का दिल ना दुखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह, आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पे अगर विचार करेंगे ना बड़े ध्यान से, तो उसके इतने गहरे पहलू हैं कि मन हैरान हो जाता है। बाबा मां हरनाम सिंह जी कमाल का पहलू बताते थे। गुरु नानक पातशाह ने जो भी वाणी उच्चारण की, आखिर में वो नानक आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसा नानक गुरु नानक पातशाह ने लिखा है, नानक, जब वही वाणी गुरु अंगद देव जी ने उच्चारण की तो नानक वैसा नहीं लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कमाल का पहलू। और ये इसको विचारा किसने? बाबा महा हरनाम सिंह जी ने, बाबा आनंद सिंह जी के मुर्शिद कहने लगे। और ये विचार किससे कर रहे हैं? वो दास साखी पढ़ रहा था जिसमें बेदी बाबा जी से विचार करे। बेदी कुल के जो उस वक्त थे उनके साथ विचार कर रहे हैं बाबा महा हरनाम सिंह जी। वो दर्शन करने आए थे। बाबा महा हरनाम सिंह जी ने उनसे सवाल किया कि हमने ये विचार देखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में कि गुरु नानक पातशाह ने जैसे नानक लिखा, ना आ की मात्रा न क, गुरु अंगद देव जी ने वैसा नहीं लिखा, नीचे ऊ की मात्रा डाली है, नानक। गुरु अमरदास जी ने अगर नानक लिखा है तो ऊ की मात्रा नहीं डाली, क को छोटी ए की मात्रा डाली है। हर एक गुरु ने जब वाणी उच्चारण किए नानक को अलग अलग ढंग से लिखा है। वजह क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेदी बाबा जी भी ये सुन के हैरान हुए। कहने लगे हमने तो इस बारे में कभी विचार ही नहीं किया। तब बाबा महा हरनाम सिंह जी ने कहा, हमारे गुरु की कृपा से जो गुरु ने सुमत बख्शी है, उस हिसाब से जो हमें समझ में आता है, ये गुरुओं की विनम्रता है कि एक गुरु ने जब नानक लिखा जिस प्रकार, दूसरे गुरु ने उनकी कॉपी नहीं की, सेम नहीं लिखा, कुछ अलग लिखा कि हम वो नहीं लिख सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी गहरी विचार है साथ संगत जी। अब इस बात पे भी कोई टिप्पणी कर सकता है कि ये तो ऐसे ही बात है, पर विचार करके देखो हर गुरु ने नानक में फर्क क्यों किया फिर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात पे किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा। अब आप वाणी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हर गुरु ने नानक लिखते वक्त हर अलग प्रकार से नानक लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसकी वजह बाबा महा हरनाम सिंह जी बताते थे कि सबसे बड़ी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में बात है, सबसे विशेष, क्योंकि जब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज वाणी की संपादना कर रहे थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, बहुत सारे भक्तों की वाणी लेकर बहुत सारे लोग पहुंचे थे दर्ज कराने के लिए। और इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सब वाणी सुनने के बाद उसमें वो गलती बताते थे कि इसमें अहंकार है, इसमें अहंकार है, इसमें अहंकार है, इस बात में अहंकार है। जिस भगत ने अजूनी को प्राप्त हुआ है, जो भगत, जो अवतार अजूनी को प्राप्त हुआ है, केवल उनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी, जो अजूनी की अवस्था को प्राप्त हुआ है, बड़े ध्यान से समझना। कबीर जी, भगत नामदेव, जितने भक्तों की वाणी है, जितने भट्टों की वाणी, जो कुछ भी वाणी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में है, महापुरुष समझाते थे कि वो अजूनी की अवस्था को प्राप्त हुए हैं तभी वो दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ऐसा क्यों है? केवल उनके ही क्यों? अजूनी को वही प्राप्त होता है जिसका अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल विनम्रता पूरी के, जो गुरु नानक पातशाह चाहते हैं वो विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसके भीतर हल्का सा भी अहंकार रह गया वो अजूनी को प्राप्त नहीं हो पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी को प्राप्त होने के लिए निरंकार के गुण चाहिए, उसमें निर्वैरता है। निर्वैरता विनम्रता की हद होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
निर्वैरता, कितना भी कोई कुछ बिगाड़ ले उसका नहीं बिगड़ना चाहिए। निर्वैरता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता, बड़े ध्यान से समझना। दास ने पहले भी शायद ये बात कही है और बाबा नंद सिंह जी के जीवन से भी ये बात मिलती है, बाबा महार नाम सिंह जी के जीवन से भी। जब सचखंड गुरु नानक पातशाह बाबा नंद सिंह जी को पहली बार बाहां पकड़कर सचखंड लेकर गए, पहली बार, बाबा नंद सिंह जी बताते हैं, कहते हम हैरान रह गए, हैरान कि बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, कि जिन्हें दुनिया पूछती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाहर बैठे हैं सचखंड के, भीतर प्रवेश निषेध है उनका। तो गुरु नानक पातशाह से सवाल किया बाबा नानक सिंह ने, पातशाह ऐसे क्यों? कहने लगे इन्हें धरती पर भेजा था एक ओंकार से जोड़ने के लिए, परमात्मा का नाम जपाने के लिए। जिस किसी ने भी अपने आप को आगे रखा, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, इस बात को भी। इसके भी दो पहलू हैं। एक होता है गुरु किसी को वडियाई देता है, एक होता है हमारे मन में होता है कि हमारी वडियाई हो। गुरु भीतर का देखता है, बाहर का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कई बार कहा है कि दुनिया ये देखती है हम कर क्या रहे हैं, गुरु नानक ये देखता है कर क्यों रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भीतर का जानते हैं हमारे। अगर हमारे मन में है कि बहुत नाम हो, दुनिया पूजे, सर झुकाए, तो अजूनी को प्राप्त नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मन की अवस्था ये हो कि संगत गुरु नानक के चरणों से जुड़ जाए, प्रभु का नाम जपे, अजूनी की अवस्था को प्राप्त होंगे ही होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े संत रास्ते में अटक गए, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े पीर फकीर, जो नाम वहां लिखे हुए दास ले नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब बड़ी गहराई से उस पर विचार करो तो तब बात समझ में आती है। तब बाबा नंद सिंह जी ने उस वक्त प्रण किया था गुरु नानक पातशाह के सामने कि भाई गुरु नानक, आज मैं प्रण करता हूँ कि सुई के नोक जितनी जमीन भी अपने नाम की नहीं बनाऊंगा, ताकि मेरा नाम रह ना जाए, मैं मिट जाऊं, क्योंकि मुझे एक ओंकार से मिलना है, दुनिया से मुझे कुछ नहीं लेना देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब बाबा महार नाम सिंह ने जब कहा था कि मांग क्या मांगता है, मांग कितनी बार कहा, तो आखिर में ये कहा था कि ये तर्ज कर दो कि सुई के नोक जितनी जमीन भी मेरे नाम पे ना हो, मुझे कोई जाने ही ना इस दुनिया में कि मैं आया भी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी ने अपना शरीर जल प्रवाह करा दिया, डर के। इस डर से महापुरुषों को डर होता है ये कि लोग कहीं पूजने न लग जाए। शरीर जल प्रवाह करा दिया कि लोग स्थान बनाकर पूजने न लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब गुरु नानक ने वडाई करानी होती है, शरीर हो या ना हो, जो अपने आप को मार लेता है गुरु नानक, उसका नाम तो फिर सारे जग में कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता, ये गुरु की खुशी है। पर जब इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मेरा दुनिया लोहा माने, मेरे आगे झुके, मेरी पूजा हो, खत्म हो गया सारा कुछ पाकर भी, इतना ऊपर उठकर भी खत्म हो गए, मिल नहीं पाए, अजूनी नहीं हो पाए, प्राप्ति नहीं हो पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कल भी दास ने विचार किया था ना, ज्ञानी संत सिंह जी मिस्किन जी, आखिर में सबको संत बनना है। ये रोड़ा हर एक के रास्ते में आने वाला है, जितने भी हम सुन रहे हैं, क्योंकि आखिर में तो इस अवस्था पर पहुंचना ही है। तो ये रास्ते में रोड़ा आएगा ही आएगा, इसे पार करना है। और इसे पार करने का एक ही तरीका है, वो उसके बाद आएगा, वो है गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सब गुरु जी के हुक्म से वहां विराजमान है। ये सब शक्तियां हैं संगत जी। गुरु जी ने ये नहीं बोला इस तुमने देवी देवता को पूजा नहीं करनी है। गुरु जी कहते सबको मानो, सबकी पूजा करो, सबका रोल अलग है। तुम अग्नि देवता को प्रणाम नहीं करोगे तो वो तुम कैसे खाना बना पाओगे। कभी गुरु जी ने भरम नहीं डाला कि देवी देवता को पूजा नहीं करनी कहते, वो तो सारे विराजमान होते हैं यहाँ पे, सबको प्रणाम करो। कहते शनि देव ਨੂੰ बड़ा चढ़ाते हैं जी, तेल चढ़ा दिता जी, ਅਸੀਂ ऐ करता, कहते किन्ना नाराज कर दे
ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ उपाय कर देते हो। और संगत जी, गुरु जी ऐसे नहीं है, गुरु जी इसके खिलाफ थे। किसी के इतने कर्म होते थे, गुरु जी खुद बोलते थे कि तू ये कर दे, तू ये कर दे, ये कर दे। क्यों? गुरु जी के पास वो देवी देवता बैठे हुए हैं ना, वो उनसे बात कर रहे होते हैं कि कैसे करूं मैं। उनका आदेश गुरु जी, वो जो बोलते थे, गुरु जी हमें वो मैसेज देते, ये कर लो। ये प्रैक्टिकल दरबार है संगत जी। हाँ, गुरु जी स्टोन्स के लिए जरूर मना करते थे, तुम स्टोन्स इतने पहन लेते हो, कहते सोवनियर पहनो, डायमंड, डायमंड फॉर एवर। सो तुम डायमंड पहनो, उससे किसी राशि से कोई कंसर्न नहीं होता है। हाँ, राशि वाले स्टोन पहनने के लिए गुरु जी मना करते थे, क्योंकि गुरु जी कहते थे वो पंडित अपनी तो कुछ कर नहीं सकते, आपे तो लोगों तो पैसे मांग मांग के वो नहीं राजे महाराजे बन के बैठ सकते, उन्हें अपने ग्रह ठीक कर सकते पत्थर पाके। तो संगत जी, ये भी हमें गुरु जी ने समझाया कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। तुम डायमंड पहनो, गुरु जी जैसे बोलते थे, तुम गोल्ड पहनो, गुरु जी ने कभी नहीं मना किया। जो तुम्हारा दिल करता है तुम खाओ। एक बार मेरे को याद है, गुरु जी ने मैं बोला जाओ जी तुम आलू टिक्की खा के आओ, चाट पल्ले खा के आओ। गुरु जी सब रस बोलते थे एंजॉय करो। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था कुछ दिन पहले कि वो जर्नी में जा रहे थे कहीं, और उनका सडनली देखा गोलगप्पे खाने को जी किया, पर वो किसी को कह नहीं पाई कि मैं गोलगप्पे खा लूं। ये जलंधर की बात है। तो गुरु जी तो हर पल हमारे दिल में बैठ के हमें पढ़ रहे हैं संगत जी। वो एक छोटी छोटी इच्छा खाने की ना, वो पूरी कर देते हैं। गुरु जी ने जैसे उन संगत ने मत्था टेका, गुरु जी ने बोला भाई आंटी ने पहले गोलगप्पे खिला के लेके आओ। देखो, गुरु जी हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं संगत जी। वो जानते हैं कि हमारा मन किस चीज के लिए तरस रहा है, उसका निजाम भी गुरु जी खुद कर देते हैं। सो खाए, खुश हो गए। अब थोड़े सत्संग में जलंधर मंदिर के करूंगी संगत जी। वहां पे सुदामा अंकल होते थे, तो कुछ सत्संग उन्होंने सुनाए। उस समय ये होता था, हम जब मर्जी पहुंच जाते थे। तो हम जब जलंधर मंदिर के पास हमने घर ले लिया, हम चक्कर लगता था, हमारा दिल होता था कि हम चाय प्रसाद के लिए ना वहाँ दूध या चीनी या चाय पत्ती हम दे जाए। हमने ऐसे 3 के 4 बार किया होगा। हमने जब आते थे हम वहां पे दे के आते थे। तो एक बार सडनली गुरु जी का फोन आया सुदामा अंकल को, कहते अंकल सलाम, कोई चाय प्रसाद का समान तो नहीं लेके आंदा? कहते हाँ जी गुरु जी, एक कर्नल साहब आते चंडीगढ़ से, वो लेके आते। कहते मना कर दो उन्होंने, मैं तो उन्होंने कदे नहीं किया लेके आओ। संगत जी, हमारे लिए ये आदेश है, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं लेके जा सकते। हम 1 केजी मिठाई ये ले जाते हैं, वो तो मालिक है। हम मालिक इस सृष्टि के बनाने वाले को क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ प्यार श्रद्धा दे सकते हैं। फिर सुदामा ने बोला, एक बार ना मैं, गुरु जी ने बोला मैं सुदामा पाठ करने जा रहे हैं तो ध्यान रखी, गुरु जी का कमरा ऊपर होता था, कोई ना आए, कोई मैंने डिस्टर्ब ना करे। तो गुरु जी कहते ऊपर गए, मेरे को सडनली वहां पे गुरु जी की शायद सीढ़ी के पास कोई शिव जी का स्वरूप लगा था, मेरे को इतना याद नहीं है, कुछ स्वरूप लगा था। और वो ना कहते सडनली मेरे को आवाज आई, घुंघरू की आवाज आई मेरे को, छम छम ऐसे करके। मैं एकदम उठा और मैंने जैसे देखा तो वो फोटो नीचे गिर गई, और वहां पे शिव जी पार्वती अपने विराट रूप में दोनों खड़े हुए। कहते मैं डर के मारे में कांप गया कि शिव जी पार्वती जी बाहर गुरु जी के कमरे का पहरा दे रहे हैं। कहते मैं बहुत डरा उस दिन, इतना डरा, मेरी हाथ पैर कांपने लगे कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या गुनाह कर दिया। खैर जब सुबह हुई, गुरुजी ने बोला तू सुदामा डरिया तो नहीं सीगा राती? उसने बताया गुरुजी ऐसे कहते तेनू मैं किया सीगा, कोई तू ध्यान रखी कोई अंदर ना आए, तू देखिया सीगा ऊपर?
कहते हाँ जी गुरु जी, मेरे को आवाज आई थी छम छम की, जैसे पायल बजती है। खैर गुरु जी ने वो हंसी में टाल दिया। फिर सुदामा ने बोला कि एक बार ऐसे हुआ कि गुरु जी का फोन आना शुरू हो गया, सुदामा बच के रही, बड़ा संकट आने वाला है तेरे ऊपर। कहते गुरु जी महाराज आगे होते ही मेरे ऊपर क्या संकट आएगा? कहते मैंने वार्न कर रहे हैं, बच के रही। तो संगत जी उसने बोला कि ऐसे हो गया कि मंडे को तो संगत डे नहीं होता था जलंधर में, तो मैंने सोचा मैं आराम से उठूंगा, सवेरे आराम से सफाई करूंगा, नहीं तो मैं 6 बजे सफाई करता था। तो कहते हैं कि उस दिन मैंने 9 के 10 बजा दिए। मैं बाहर निकला, जो टर्न जो सड़क से आके एम्पायर स्टेट को सड़क मुड़ती है बस स्टैंड के साइड से, कहते हैं वहां पे झाड़ू कर रहा था। मैं इधर को मुड़ा, गेट के सडनली एक जीप आई, जीप का बोनट खुला और मैं जीप के अंदर, और जीप के अंदर मैं बैठ गया। जैसे कहते जीप स्पीड ठक करके टक्कर मारी, बिजली का पोल था उसके ऊपर टक्कर मारी, और मेरे गोडे लगे और मेरे हिप्स उसके गाड़ी के अंदर। कहते आंटी साथ वाले घर चिल्लाई, सुदामा मर गया, बचाओ लोगो, सुदामा आज मर गया। तो संगत जी उनको निकाला, सुदामा को मुश्किल से तो जीप रोकी किस तरह से वो, और सुदामा को उसमें से पकड़ के निकाला गया। और उसके बाद डॉक्टर कहते गोडे मेरे और मेरे हिप्स पे इतनी चोट लगी। और मैं फिर कहते गुरु जी का फोन आ गया, सुदामा तेनू आज बचा लिया, मौत दे मुंह विचों तेनू मैं कट लिया। शुक्राना गुरु जी। कहती मेरे को समझ आया कि मैंने डिसर्व भी किया। मैंने सोचा गुरु जी नहीं देख रहे हैं, मैं आराम से सफाई करूंगा, आज मैं दिन चढ़े झाड़ू लगाऊंगा बाहर। तो संगत जी ये भी एक ये प्रैक्टिकल गुरु है हमारे। गुरु जी हमें करके बताते हैं हर पल कि मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरे से कुछ भी छुपा नहीं है। तो संगत जी एक बार जलंधर मंदिर हम गए, हमने वहां पे मत्था टेका, सुदामा अंकल ने हमें चाय प्रसाद दिया। मेरे को सुबह के 7:15 बजे थे, चाय प्रसाद दिया, हमने मत्था टेका, प्रणाम किया। फिर जहाँ पे फिश एक्वेरियम है वहां पे बैठ गए, चाय प्रसाद लिया। तो उन्होंने बोला आ गया लो आप जाओ बस अब। तो हमने गुरु जी को फिर मत्था टेका, वहां पे तो बादाम बिखरे हुए थे। हम हैरान हो गए, बादाम यहाँ पे किसने रख दिए? पूछा हमने, सुदामा अंकल यहाँ बादाम? कहते मैं तो रखे नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ बैठा हूँ, ये तो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हमको। तो संगत जी वो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हमें, हमने वो बादाम प्रसाद उठाया। ये इस बात का प्रूफ है संगत जी कि आजकल जो हनी प्रसाद, हनी वर्षा हो रही है, या लॉकेट वर्षा हो रही है, या इलायची वर्षा हो रही है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। ये कोई वैसा नहीं है क्योंकि जानबूझ के क्रिएट कर रहा है। हमने हनी वर्षा तो गुरु जी के एम्पायर स्टेट में भी देखी है, गुरु जी के स्वरूप में निकलता था, सीढ़ियों में गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें गुरु जी ऐसे करके बैठे हुए हैं। गुरु जी ने हमें बोला जाओ देखो हनी वर्षा हो रही है, जाके चेक करो। तो संगत जी वहां पे हनी वर्षा थी, खुशबू थी गुरु जी की। और अब मैं अब याद आ गया खुशबू से, गुरु जी के हर कदम पे, हर अंग से गुरु जी की एक ऐसी सुगंध खुशबू निकलती थी, गुलाबों की खुशबू, चंदन की खुशबू, कलियों की खुशबू, मतलब खुशबू ही खुशबू होती थी। दूर से पता लग जाता था एम्पायर स्टेट का जो मेन गेट है वहां से कि गुरु जी के ऑफिस, गुरु जी के पास पहुंचने वाले, दूर तक पता लग जाता था। गुरु जी जिस चीज को हाथ लगाते थे उसमें खुशबू आती संगत जी। तो गुरु जी ने एक बार, मेरी सिस्टर आई हुई थी कनाडा से कनेक्शन, गुरु जी ने बोला हमें, हम मिलने गए, गुरु जी कहते एनू ले जाओ, एनू ले जाओ, एनू नाल ले जाओ चंडीगढ़, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ब्लेसिंग मिली है। सो हम उनको ले आए, वी वेंट टू गोल्डन टेम्पल गए, हमने दुर्गियाना मंदिर देखा। जैसे हम दुर्गियाना मंदिर गए वहां पे संगत जी गुरु जी की गाड़ी खड़ी हुई, जय गुरु जी ब्लेसिंग, और हम हैरान हो गए कि ये गुरु जी यहाँ पे, गुरु जी ने मतलब एग्री कर लिया है कि मैंने ब्लेस कर दिया, तुम माता रानी के पास भी आ गए हो, मैंने ये भी ब्लेस कर दिया है तुम्हें। हम वापसी में संगत जी हम कुरुक्षेत्र गए, हमने वहां पे पूरी ब्लेसिंग ली।
हम कभी नहीं जा सकते थे, नहीं तो हम कुरुक्षेत्र, ये प्लान विजिट थी गुरुजी ने की थी। सब जब वापस गुरुजी ने फिर जब वो आ रही थी, गुरुजी ने एक अपने चरणों के जोड़े दिए, ले अपनी बहन ने दे दे। सारे ने दे देते, वो कहेगी मैनू नहीं देते। तो संगत जी गुरुजी ने वो अपने चरणों के जोड़े दिए। इतनी फ्रेग्रेंस है गुरुजी के, मेरे को लग रहा है 16 ईयर्स तो हो जाएंगे गुरुजी के वो दिए पर, बहुत फ्रेग्रेंस है वो। गुरुजी कहते हैं मेरे टेलीफोन है, कोई प्रॉब्लम हो मेरे नाल गल करो। तो संगत जी जब करण चौहान 2017 में ईश्वरी यात्रा पूरी करके गुरुजी के शरण में चले गए, तो पेंशन जब लगनी थी तो हमें कोई कागज नहीं मिला संगत जी, और ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हम, कैसे लगे। उन्होंने बोले एक सर्टिफिकेट लेके आओ तो उससे पेंशन लगेगी। सब कुछ देख लिया संगत जी। मेरी सिस्टर आई हुई थी तब उन दिनों, उसने गुरुजी के जोड़े के पास आवाज लगाई, गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगता है, दीदी का कागज नहीं मिल रहा, आराम नाल बैठे हो, लब के दियो, किस तरह लगेगी पेंशन। संगत जी हमने वो ब्रीफ की कितनी बार देखा होगा, और जैसे हमने इसको खोला वो सामने ऐसे लगता किसी ने ढक्कन के ऐसे चिपका दिया है। संगत जी ये गुरुजी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते, वो देख रहे हैं। मैं तो कई बार गिव अप कर देती, गुरुजी आप देख रहे हो कहाँ पे वो चीज रखी, आप ला के दे दो, आपको सब पता है। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को आज ये मौका दिया है कि मैं ये बता सकूं संगत को कि गुरुजी परमात्मा ईश्वर है, वो सब जानते हैं कब क्या देना है, क्या इच्छा पूरी करनी है, ये सब गुरुजी को पता है। बस उनके साथ जुड़े रहो, उनको प्यार करो, उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे संगत जी, सिर्फ हम में से वो चाहते कि हम उनको प्यार करें, दिल से याद करें, हर पल उनका शुक्राना करें। पल पल शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, सारी संगत को ब्लेसिंग्स मिले। हाँ एक बात और मैं ये कहना चाहूंगी संगत जी, ये भी मैंने देखा संगत में कि वो होस्ट प्रसाद लेके खड़े हुए गुरुजी को भोग लगाने के लिए, और जो ऑर्गेनाइज खड़ा है वो पता नहीं क्या मंत्र बोल रहा है, वो होस्ट थाली लेके खड़ा हुआ, कब से 5 मिनट हो गए वो भोग की थाली लेके खड़ा हुआ। मतलब ये सारी झूठी प्रैक्टिस जो शुरू हो गई है ना संगत जी, ये पुरानी संगत का फर्ज बनता है कि नई संगत को समझाए कि इसमें कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। हम जितना करेंगे गुरुजी की ब्लेसिंग से हम दूर होते जाएंगे। सिर्फ गुरुजी ने जो रास्ता हमें दिखाया संगत जी, इतना सिंपल रास्ता, बड़े मंदिर से टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी होती है, हमें उनको फॉलो करना है बस, ना किसी संगत नई संगत की कहने में आना है। कई मैसेज जाते हैं, कुड़ी इस तरह कर ले, पुत्र इस तरह कर ले, सब फेक मैसेज है। तुम्हारे गुरुजी तुमसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, तुम्हें समझाएंगे। जब तुम ध्यान में बैठोगे गुरुजी तुम्हें गाइड्स करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, तुम ऐसे करो ऐसे करो। डाउट है तुम पुरानी संगत से पूछ सकते हो, अपनी मनमानियां नहीं करनी चाहिए संगत जी। सॉरी कई संगत को बुरा भी लग सकता है, कर सच्चाई इसी में है कि हमें नई संगत को नहीं भटकाना है, उनका जितना सिंपल रास्ता हमें बना सके हमें उसमें हेल्प करनी चाहिए, ताकि गुरुजी हमें इस जीवन में बस हमें मोक्ष दे दें, बस हमारी नैया पार लगा दे। जो नैया उन्होंने बनाई है, देखो कितना सुंदर भजन था कि कोई मानता है किसी को भी, वो भी एक्सेप्टेड है, जिसका ध्यान लगा रहा सब एक्सेप्टेड है इस दरबार के। ऐसा दीवान दरबार है संगत जी, और इस दरबार में का एक पार्ट गुरुजी ने हमें चुना, ये आपका गुरुजी मां लाख लाख शुक्राना है। हम तो इस काबिल ना थे कि आपकी शरण में आ पाते गुरुजी, आपने हमने बुलाया, आपने हमें इतने लाड लड़ाए, अभी भी लाड लड़ाते संगत को, कितनी कितने दुखों से निकाल लेते हैं, एक मुस्कान देते हैं उनके चेहरों पे। सो थैंक यू संगत जी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। थैंक यू सुरेश वासन अंकल आपका। मैं तो हर पल यही प्रेयर करती हूँ गुरुजी महाराज आपको इतनी लंबी उम्र दें, ये प्लेटफॉर्म चलते रहे आपकी टीम के भरोसे, और पुरानी संगत अपने सत्संग शेयर करते रहे, इसी तरह से सत्संग पूरी दुनिया में फैल जाए, गुरु महाराज की महिमा कि एक ऐसा दरबार जहाँ कोई प्रवचन नहीं दिया जाता, कुछ नहीं बताया जाता है,
सिर्फ तुम आ जाओ, बैठ जाओ, शब्द सुन लो, लंगर प्रसाद खा लो। बस यही रास्ता है हमारी इस दुनिया से पार लगने का। संगत जी, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज का। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज आपका। आपने मेरे को मौका दिया। मैं हमेशा डरती थी। गुरु जी महाराज ने आपने कब ये प्लानिंग शुरू कर दी थी, मैं इस भेद को नहीं जान पाऊंगी, पर आपने मेरे को ये पल दे दिए। वो पल जो आपने अपने साथ बिठा के हमने एंजॉय की, उसका भी लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनू शर्मा आंटी, थैंक यू सुरेश वासन अंकल आपका, थैंक यू सब मल्टीलिंगुअल टीम, थैंक यू संगत जी, आपने मेरे को सुना। मेरी गलतियों को क्षमा कर देना प्लीज संगत जी। मैंने कुछ ऐसा बोल भी दिया होगा तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त के इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो व्रत पारा, हमरे दुष्ट सब है तुम कावो। आप हाथ दे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए, पूरन होए हमारी आशा। और भजन के रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ। जो पर जाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए, सुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए, मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा। यस तुझ जो करियो रक्षा, राख लियो मोय राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता। हो पुरी ततर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल पाए सब जो अवतारा, काल पाए कर बिशन प्रगासा। सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी। सगल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो। सकरन को पल मोबद कियो। कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट की जान। जब उद कर्क करा कर तारा। प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह कर्क करत हूँ कब मैं मिल तो दे तर सब। जेते बदन श्रेष्ठ सब दार। आप आपने मोझे उतार। तुम सब ही ते रहत निरालम। भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद संभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा। को पेव न पापद भेदा। तांको कर पान अनुमान। महामूढ़ कछ भेद न जाने। महान देव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत न पेव। आप आपनी बुध है जेती। पेन पेन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा। कह
बिन सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई कोपा अंडज जेरज से तज कीने मुझ खान बहु रच देने कहूँ कुल राजा हव बैठा समट प्यो संतरे बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्बव अब रक्षा मेरी तुम करो असक संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सगल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी पर के दुष्ट दुखत हव मरे उर्क जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है आके काल निकट ने रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्ट जाय निहरो आके तापत नगमो हरो और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पास देताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट दोग ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दोग ते ले बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले रामकली महला तीजा नंद क्योंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया राग रतन परवार परियां सबद गावने आईया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रख मन मेरे दुख सब विसारना सब नांगल समरथ स्वामी सुख्य मनो विसारे साथे साहिबा क्या नहीं करते रहे सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन वसावे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे सच नाम मेरा आधारो कर शांत सुख मन आयु से अजय निचा सब पूजाइया कहे नानक सुनो संतो सब करो प्यारो सच नाम मेरा आधारो वजे पंच दूत वस कीते काल कंड कुमारिया कहे नानक तैस को अत करन दवाजे पार ब्रह्म पाया त्रि सगले वसुरे संत सजन पै सर से पूरे गुर के जान सुनते मुनि कहते पवित्र सतगुरु रहा पर पूरे वाजे अनहद तूर जी आनंद सुनो वड पागियो सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोधा हिदाया खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय।
शिव जी सदा
जय गुरु जी की। शिव
आस था हर कर्म में, आस था हर घर में, आस था हर दर में, आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में।